اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس لائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے فیٹ لائن، قسمت کی لائن۔ یہ بڑی اہم لائن ہے اور بہت سارے لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان سب کا محور جو ہوتا ہے وہ صرف یہی ایک لائن ہوتی ہے۔ مطلب ان کے سارے سوالات، اگر آپ صرف اس ایک لائن کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو سارے سوالوں کا جواب صرف اس لائن میں آ جائے گا۔ یہ لائن نارملی دوسری انگلی یا دوسری اور تیسری انگلی کے درمیان میں شروع ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے یہ اوپر سے نیچے آپ دیکھیں اس طرح آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی سمت اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورٹیکل لائن ہے۔ کچھ ہاریزونٹل لائن ہیں جو لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ ہوتی ہیں، یہ اوپر سے نیچے کو لائن آ رہی ہے، اس کو ہم فیٹ لائن بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، اس لائن سے ہم جج کیسے کرتے ہیں ایونٹس کو۔ مین مقصد میرا ویڈیو میں اس چیز کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آئے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک خاکہ لیا ہے ہاتھ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس میں گرافیکلی اس چیز کو پریزنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو لائن ہوگی اس کی، میں اس کو ریڈ کلر میں کر دیتا ہوں۔ یہ لائن یہاں سے کہیں سے شروع ہوگی، یہاں اس لائن سے، اس پوائنٹ سے یا اس پوائنٹ سے، اور یہ اس طرح سیدھ میں آئے گی نیچے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں۔ یہ اس کا پوائنٹ اس سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کی درمیان دوسری انگلی کی طرف، مطلب اس کی پوزیشن ہے، وہ ہر پوزیشن کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اب ہم نے مینلی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس لائن کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ میں کلر بھی دوسرا کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے، اور ایک پوائنٹ یہ 1، یہ 2 اور یہ 3 لکھا ادھر ہے۔ اس کی بڑی اچھی نہیں آ رہی، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 3 پوائنٹ ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ نیچے سے، کلائی کے پاس سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پہلا پوائنٹ، دوسرا اور تیسرا پوائنٹ، 3 حصے آپ نے اس کے کر لیے۔ جو شروع ہو رہا ہے نا، یہ جہاں سے لائن شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ ہے، یہ پوائنٹ ہے جی 5۔ شروع جہاں سے ہو رہا ہے وہ پوائنٹ کون سا ہے؟ 5 نمبر۔ اور جہاں یہ ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ لائن ختم ہو رہی ہے اس پوائنٹ پہ، وہاں کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہاں کا نمبر ہے 75۔ یہ شروع سے ہی ہے جی، یہ کہ یہ جو ہیلتھ، یہ آپ کی قسمت کی لائن ہے نا، اس کو 5 سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ اس وقت آپ کے جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور 75 سال کی عمر جو ہے نا اس کا اینڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی جگہیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ 75 سال عمر ہوتی ہے ایوریج، 65، 62، 64 یہ ایوریج عمر ہوتی ہے، لیکن ہم کی کیلکولیشن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے نا سیکنڈ والا، یہ آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ میں نے لکھا ہے سیکنڈ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ تک جو آپ کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے نا، وہ ایج آپ کی کنسیڈر کی جاتی ہے 40 ایئرس۔ مطلب یہ لائن شروع جہاں سے ہوتی ہے 5 سے لے کے فرسٹ پوائنٹ سے، مطلب فرسٹ پوائنٹ سے لے کے تو آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا، اس کی ایج کتنی ہے؟ یہ 40 ایئرس ہے۔ اور آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ سے تھرڈ پوائنٹ ہے، سیکنڈ سے تھرڈ، یہ دیکھیں میں لکھ لیا، اس کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے 41 سے لے کے تو آپ کی اینڈ تک 65 کہہ لیں، 70 کہہ لیں، 75 کہہ لیں، یہ آپ کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا 41 سے لے کے 75 تک، اس کے ایونٹس کم ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں لک لائن کے حساب سے، مطلب کم اس میں چینجز ہوتی ہیں۔ جو 1 سے 2 تک ہے نا پوائنٹ، اس میں ایونٹس فاسٹ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اور کسی بندے کو کس سپیڈ سے وہ گرو کر رہا ہے، یہ چیز جج کی جائے گی کہ اس کی پہلے سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، یہ چیز بڑی کیلکولیٹ کرتی ہے۔ جو بندہ بلینئر بنے گا نا، کچھ تو بائی لک ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اللہ کی خاص میں بائی لک بھی ہوتے ہیں، لیکن نارملی وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں نا بہت زیادہ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ترقی کا ٹائم ہوگا نا، وہ 20 ایئر سے شروع ہو کے تو 40 ایئرس تک ان کی وہ سٹارٹنگ ہو جائے گی۔ اگلے جو 30 سال ہیں وہ اس کو آگے گرو کر رہے ہوں گے، مطلب
वो अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर उस 50-60 की उम्र में हो सकता है 2 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन कोई बंदा 40 साल की उम्र तक अगर 50,000 कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आगे की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। इस लाइन के ऊपर कुछ निशानियाँ हो सकती हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर मार्क्स हो सकते हैं। मार्क्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जी ये मार्क्स हैं, ठीक है जी, इसमें इस तरह के मार्क्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर निशान हो सकते हैं, निशान स्टार का कहा जाता है, बाल इतनी अच्छी नहीं बन रही है तो मैंने इसे इस सॉफ्टवेयर से देखा। स्टार होता है, सर्कल होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है, ये इसके ऊपर निशान बनते हैं। हर निशान का अपना एक मतलब है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। शुरू 5 से होगा। शुरू कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन ये होती है, इस तरह जाएगा ये, नीचे से ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। नीचे बिल्कुल 5 से शुरू होगा और ऊपर को 75 पे ख़त्म होगा। जहाँ पे वो उस लाइन को इंटरसेक्ट करता है आपकी सेकंड लाइन को, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, वहाँ पे हम इसको 40 ईयर्स कंसिडर करते हैं। इससे पहले के सारे इवेंट्स इधर से रीड किए जा सकते हैं कि वो बंदा को क्या हुआ था, क्या किस टाइम तरक्की मिली थी, किस टाइम हालात ख़राब हुए थे। तो ये इसकी तो एक मेन चीज़ ये होगी ना, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप जो है ना टेक्स्ट में पूछ लें। ये होगी आपकी फेट लाइन। अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ गई होगी जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखा आपने, ये सेकंड लाइन से शुरू हो रही है, एंड पे आ रही है फेट लाइन, किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीरें अब इधर 2 किस्म की इसने बताई है। एक किस्मत की लकीर वो है जो कि डार्क है, ठीक है। एक किस्मत की वो लकीर है जो कि हल्की है। अब एक बात गौर से देखें, इस तस्वीर में डार्क का मतलब फैला हुआ होना नहीं होता। डार्क का मतलब होता है इन डेप्थ लाइन्स के अंदर। लाइन्स में ऐसी लाइनें भी होती हैं जो चौड़ी होती हैं, ऐसी लाइनें भी होती हैं जो गहरी होती हैं, ऐसी लाइनें भी होती हैं जो हल्की होती हैं। अब ये जो है ना, इस वाले में, इसमें मेरा माउस है, आप देखें कि इसकी लाइन की कांस्टेंट एक लेंथ है, कहीं से कम नहीं हो रही। इस मतलब ये तो क्रॉसिंग ही वैसे लाइन के मतलब बता रहा हूँ। इससे आप ये जज कर सकते हैं कि इस बंदे की लक बाय मतलब पूरी ज़िंदगी इसकी लक एक अच्छी लक में कंसिडर की जाती है कि जो शुरू से लेके एंड तक उसकी अंदर कंसिस्टेंसी थी, एक जंप नहीं थे, सडन चेंजेस नहीं थी, एक कंसिस्टेंसी थी। इस वाली लाइन को देखें कि ये स्टार्टिंग के ऊपर तो डार्क है, लेकिन बाद में जो हम आगे जाते जाते हैं वो स्लो होती जाती है, हल्की होती जाती है, डिम होती। तो ये लाइन जो कि हल्की हो गई, डिम हो गई, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये लक जो है ना स्टार्ट के ऊपर, मतलब बचपन में तो एक बंदा लकी था, अच्छे बाई लक इसके साथ थी, किस्मत इसके साथ थी और इसको अच्छे मौके मिलते रहे आगे बढ़ने के, लेकिन जो टाइम गुजरता गया बेचारे के साथ मिसहैप होता गया। नेक्स्ट में देखें 3 किस्म की लाइनें उसने शो की। ये जो लाइन है ना पहली वाली, ये गहरी नहीं है लेकिन चौड़ी है। चौड़ी लाइन भी शो करती है कि आपकी लक जो है ना वो इतनी ब्राइट नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मतलब हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं। इस वाली लाइन में देखें कि वो लक लाइन ओवरऑल डिम है। मकसद ये है कि इसमें ये बंदा भी कोई इतना लकी कंसिडर नहीं होता, क्योंकि इसकी लक लाइन में ऐसी चेंजेस है ही नहीं जो इसको ऊपर लेके जा रही है। लेकिन ये ध्यान में रखें, इसका एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है, ऐसा बंदा कि जिसकी लक लाइन कंसिस्टेंट रहती है ना, सारी ज़िंदगी ये बंदा एकदम डाउन नहीं होता। मकसद ये है कि एक बंदा ऐसा है कि जो एकदम उसको बैठे बैठे करोड़ों रुपए का इनाम निकला है, बहुत अमीर हो गया, फिर ऐसा हुआ कि जी कोई ऐसी बेट लगा ली, कोई ऐसा कोई जहाँ पे कारोबार लगा कर शुरू किया कि लखपति था, सारे पैसे तबाह कर दिए, तो वो इन चीज़ों में नहीं होता। ये जैसे कि कुछ सरकारी मुलाजिम है, सारी ज़िंदगी एक ही जॉब की, जितने पैसे थे उससे थोड़े कम ज़्यादा बेचारे को आते रहे, वो तरक्की नहीं की, लेकिन एक कंसिस्टेंट लाइफ की। ये इस हिसाब से ये दोनों लाइनें लकी कंसिडर की जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे के कमाने के, ऊपर जाने के, फेम के शौकीन है, फिर ये दोनों लाइनें आपके लिए नहीं है। ये जो लाइन है ये डिफरेंट हाथ है, ये इसकी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब नॉर्मल से हट के। ये वो बंदा है जिसके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, मतलब ऐसा बंदा जो अपने आइडिया से, मतलब ये डिफरेंट सोचता है। सब लोग अगर सोच रहे हैं ना एक रास्ते पे जाने के लिए, तो ये उससे डिफरेंट रास्ता सोचेगा और ये उसमें कामयाब भी रहेगा। ये इस बंदे की निशानी। ये लाइन जो होती है ये ऐसे लोगों में होती है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये देखें जी, ये लाइन ऐसी लाइन जो आपकी लाइफ लाइन से टच करती है ना शुरू में, और ऊपर तक जाती है डेप्थ में भी, और आपकी उंगली के करीब करीब पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं माउंट। इस माउंट को टच करती है, ये बंदा बड़ा लकी बंदा होता है। एक ऐसा बंदा जिसकी एनर्जी थी, जिसकी छोटे होते से एक गोल था, एक एम्बिशन थी कमाने की, मेहनत करने की, और वो उस पर कायम रहा है,
और उसने अपने गोल को अचीव किया। ये 7 वाली लाइन देखें, एक ऐसी लाइन के जो नीचे से शुरू ही नहीं हो रही, जो कहाँ से शुरू हो रही है, मिड लाइन से। आप ये कह सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था, हमने बताया था मैंने आपको कि ये 40 ईयर्स को ये शो करता है। इसका मतलब ये है कि 40 ईयर्स से पहले इसकी लक आम बंदों जैसी थी, बराए नाम थी, कोई चेंज नहीं थी, ये आम एक सा बंदा था, ऑर्डिनरी मैन था। लेकिन 40 साल के बाद एकदम इसकी लक जो है वो इस तरह खुली कि इसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करके हासिल करते हैं। इस तरह की लाइन ज़्यादातर उन लोगों की होती है कि जो एकदम किसी इनकी पार्टनर्स जो होते हैं, जैसे कि शादी किसी बड़ी अमीर घर में हो गई, कोई बड़ा आपको कोई इनाम निकल आया, कोई बॉन्ड निकल आया, कोई इस तरह की कोई जैक लग गया कि दिनों में लखपति हो गई, ये उस लोगों की लाइन। अच्छा जी, अगली लाइन देखें, ये लाइन एंड से शुरू हो रही है, एंड पे ख़त्म हो रही है। ये वो बंदे की लाइन है कि जिसकी अपनी सारी ज़िंदगी तो गुर्बत में गुजरी। आपके नज़दीक आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जिनकी अपनी सारी ज़िंदगी तो जिस तरह भी गुजर गई, लेकिन उनके बच्चे एकदम को पढ़ लिख गया, कोई साइंसदान बन गया, कोई बाहर इमिग्रेशन में चले गए, कोई लखपति करोड़पति एकदम हो गए, या फ़ौज में कोई बड़ी ओहदे पे चले गए, या सरकारी मुलाजम में गए, या डॉक्टर बन गए। तो ये वो उन बंदों की निशानी है कि जो अपनी ज़िंदगी लक कोई भी नहीं, लेकिन एकदम आखिरी एज के ऊपर लक उनको ऐसी इस तरह मिली कि वो बैठे बैठाए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये जो 7 वाली है, ये भी आप देखें कि ये मुड़ के आ रही है। किधर से मुड़ रही है? ये आपका ये एक माउंट है, माउंट ऑफ सन कह लें इसको, क्योंकि अभी हमने माउंट्स नहीं पढ़े इसलिए मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाता। इस तरह की जो कर्व वाली लाइन है ना, कर्व वाली लाइन हमेशा, इस लक लाइन में कर्व हमेशा डेंजरस होती है। कर्व का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा कि जो सोच रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं हुआ, उससे कुछ डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप 10 सोच के गए हैं और आपको 1000 मिल गया, ये भी हो सकता है आप 1000 लेके गए हैं और आप 10 लेके वापस आए। ये उस बंदे की निशानी, एक ऐसा बंदा जो इनकन्सिस्टेंट है और जिसकी लक लाइन जो है ना वो इस किस्म की, उसमें इस किस्म के टिल्ड आते हैं कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होते। ये लाइन उसके अपोजिट है, ये टिल्ड में आती है, लेकिन टिल्ड में किस में आती है? लाइफ में आती है। एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज किस तरीके से हुई कि इस किस्म का, जैसे छोटे होते एक ऐसा बंदा जो बड़ी रिच फैमिली में पैदा हुआ, जिसको टेंशन ही कोई नहीं थी, जिसने कभी लक के बारे में सोचा ही नहीं था, उसकी सारी लक डिपेंडेंट थी। लेकिन एक ऐसी स्टेज आई कि जिसमें उसने खुद से भी मेहनत की, लेकिन अब लाइन उस एंड पे नहीं गई जिस एंड पे शुरू पे थी। ये जो पहले हमने पढ़ी थी ना कि वो माइनस प्लस हो जाती है, ये उसके उल्टा है। एक ऐसा बंदा जो सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहता है, ये उसकी लाइन। ये अगली लाइन है जी हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, इसके पैरेलल सीधी चल रही है। ये बहुत कॉमन लाइन है, 90% लोगों की ये होती है। ये वो लाइन होती है जिसमें लक कभी अमल दखल होता है, इसमें मेहनत कभी अमल दखल होता है, जिसमें क्रॉसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपके पास में इसे से लेकर सही तक आपको ये मसला हुआ था, आपकी हेल्थ में ये इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, ये उस चीज़ को डिलीट करता है। ये कहने को भी एक नॉर्मल लाइन है, लेकिन इसमें भी जर कोई नहीं। ये बहुत सारे लोगों की लाइन, मैंने जितने लोगों के हाथ देखे, ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये लाइन होती है। अच्छा जी, अगली 2 लाइनें देखें। ये 2 लाइनें, अब ये लाइन टिल्ड कर रही है आपके हार्ट की तरफ, हार्ट लाइन की तरफ, ठीक है। और ये टिल्ड कर रही है आपके ऑपोजिट, आपके माइंड लाइन की तरफ। हार्ट लाइन की तरफ जो लाइन टिल्ड कर जाएगी, ये वो बनता होगा कि जिसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ जाएगी किसी वजह से, और उसकी नेगेटिविटी आने की वजह से उसकी लक में फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। दूसरा जो बंदा है उसकी वो ज़िंदगी है कि जिसमें उसकी जो लक लाइन है ना वो एकदम डिपेंडेंट हो गई है उसकी किसी एक्ट के ऊपर। मसलन वो किसी रूहानियत की तरफ चला गया है, उसको किसी कंपेनियन की तरफ से कोई इस किस्म का तोहफा मिल गया कि उसकी लक जो है ना वो उस साइड के ऊपर टिल्ड कर गई। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये बंदे दौलत में ऊपर जाएं, लेकिन वो एक पुरस्कून और ज़हनी जो है ना वो उस स्टेट को भी इन दोनों लाइनों से पढ़ा जाता है। अच्छा जी, अगली जो है ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये जिसमें ब्रेक होकर दोबारा बन जाना, ये यहाँ शुरू में ब्रेक हो जाना, मिड में ब्रेक हो जाना, और ये एंड पे ब्रेक हो जाना। ब्रेक जिस टाइम होगी ना वो टाइम होता है कि जिस टाइम आपकी जो लक है ना वो बिल्कुल ही आपकी कंट्रोल में नहीं है और आप हालात के रहम करम पे हैं। ये निशानी ये भी शो करती है किसी बड़े नुकसान की तरफ आपको हुआ, कोई ज़हनी नुकसान या प्रॉब्लम इस किस्म की फाइनेंशियली जो आपकी लक को जिसमें डिपेंडेंट किया। अब ये उसमें एज को डिफ़ाइन कर रही है। ये टीनेजर की एज है, मतलब यंग एज में, ये बिल्कुल छोटी एज में, ये
40 से प्लस एज में, तीनों ये इस चीज़ को शो कर रही है कि आपको इन चीज़ों में मसला हो सकता है। अच्छा, ये 2 लाइनें देखें, ये इनको चेन, इनको बोलते हैं ब्रेक। वर्ड इंग्लिश में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब एक ऐसी लाइन है जो टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है। इनका मतलब ये आपको परेशानियाँ आपको बता रही है, लक का डाउन हो जाना। ये वो बंदे होते हैं जिनकी लक में सडन चेंज आती है। जैसे ये देखें, ये पैरेलल लाइन है ना, ये सडन चेंज को शो करती है। सडन चेंज में क्या होता है कि आप कल तक तो बड़े करोड़पति थे और आज आप कख भी नहीं, ठीक है। ये होता है कि जी पैसा आया, अमीर हो गए एकदम, कोई ऐसे हालात हुए बिल्कुल ज़ीरो हो गए, फिर पैसा आया, फिर ज़ीरो हो गए। कुछ ऐसे सियासतदान आप देखेंगे कि जी आज वज़ीर आज़म है, कल कोई ऐसे हालात होंगे, जेल में होंगे, परसों फिर कोई और बीमार होंगे, फिर एकदम फिर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। उनके हाथों की ये निशानी है जी। ये ब्रेक हुई, फिर बांगी ब्रेक, मतलब जब ब्रेक हुई तो लगता था कि दोबारा बनेगी, लेकिन फिर कोई अनइंटेंशनली इस तरह की सूरत हाल हुई कि दोबारा भी लाइन पर बन गई। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़ी दिलचस्प लाइन है, इसको बोलते हैं वाई शेप हो जाना। अगर आपकी लक लाइन वाई शेप हो गई है ना, इसका मतलब ये है कि आपको पैरेलल, मतलब एक बंदा एक जॉब कर रहा है तो एकदम 2 हो गई। इसका मकसद ये है कि उसके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल जो है ना वे मिल गए, उसके पास कोई इल्म आ गया नफ़े वाला, उसका कोई ऐसी ताकत आ गई जिसकी मदद से उसकी जो लक है ना वो डबल साइड पे चलेगी, ठीक है। ये पहली लाइन जो है, जो वाई से जिसको कहा जाता है, ये इस चीज़ को शो करती है। एंड वाली लाइन जो वाई है, ये शो करती है कि एक ऐसा बंदा जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाए ना, उसकी लक लाइन ज़िंदगी के साथ अटैच हो जाती है। मतलब वो जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन इधर को अटैच हो गई, 2 मुँह हो गए। 2 मुँह का मतलब ये है कि अब उसकी सिमत कोई नहीं है, ना वो आगे को जा रहा है ना वो पीछे को जा रहा है, वो कंसिस्टेंसी उसकी ख़त्म हो गई, उसकी तरक्की ख़त्म हो गई, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो मार्क है, इसको ये जिसको आप गुड का निशान कह सकते हैं, 7 उल्टा कह सकते हैं। उल्टा 7 जिसके हाथ में होता है ना, उसके ये भी निशानी है कि कोई इस किस्म का कोई मसला आ जाना। जैसे कि एक बंदा बिलियनियर है, शोबिज़ का बहुत बड़ा, लेकिन कोई इस किस्म की उसके ऊपर कोई केस बन गया कि वो जेल चला गया, उसकी लाइफ ही टोटल चेंज हो गई। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 100% उल्ट हो गया। तो ये हाथ उस चीज़ की निशानी है। अब ये नेक्स्ट जो हाथ है, इसमें इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, ये रेक्टेंगल है दोनों हाथों में ना। रेक्टेंगल का मतलब होता है चेंज आना। चेंज में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर तो चेंज आपकी हार्ट लाइन के ऊपर आ गई तो इसका मतलब ये है कि नफसियाती तौर पे कोई इस किस्म का इशूज़ बंदे के साथ हुआ कि उसकी लक टोटली चेंज हो गई। अब लक चेंज किस एंगल में हुई है इसका नहीं पता, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ये उसकी बाकी लाइनों के साथ उसकी कंजंक्शन बना के देखा जाता है तो पता चलता है। अब ये इसमें वो देखें 40 ईयर्स की एज में उसको कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हुआ था कि जिसकी वजह से उसकी लक जो थी ना वो डिस्टर्ब हुई। दूसरी लाइन में वो देखें कि वो 40 एज नहीं, वो तकरीबन 50-55 या 60 की एज में उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। हो सकता है ये हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा इशू हो या कोई एक्सीडेंट हो या कोई इस तरह की परेशानी हो कि वो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ दे और उसकी लक जो है ना उसकी अप्रोच रुक जाए, ठीक है जी। यही चीज़ आप इन तीनों में भी देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल स्टार्ट लाइफ के स्टार्ट में छोटा बच्चा था, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इस किस्म की चीज़ हुई, कोई आग लग गई, खुदा न खास्ता, ये उसको निशानी को शो करता है कि उसकी जो तरक्की थी तेज़ी से वो रुक गई। यही चीज़ इस लाइन में, मतलब ये मिड एज में, और ये लास्ट इस लाइन के ऊपर मतलब एट द एंड ऑफ दिस एज, ये शो करता है कि कोई इस किस्म की परेशानी, कोई एक्सीडेंट का जिसकी वजह से उसकी डेथ का भी कुछ चांस हो। अगर ये हेल्थ लाइन के साथ भी ये चीज़ शो करती है फिर इसको इंश्योर होकर कह देंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे, ठीक है जी। ये जो इसको चेन बोलते हैं। चेन हमेशा नुकसान को ज़ाहिर करती है, चेन हमेशा इनकन्सिस्टेंसी को ज़ाहिर करती है, चेन हमेशा इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आपका जो ज़हन और आपकी जो लक है उसकी डायरेक्शन कोई नहीं। अब इस स्टेज के ऊपर ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। एक बंदा जो कि कोई डॉक्टर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे इस हाथ की एग्जांपल दे। एक बंदा डॉक्टर था, सारी ज़िंदगी बिजनेस किया डॉक्टर की, बहुत कामयाब था, किसी वजह से वो बेचारा मेंटली या साइकोलॉजी निकल पागल हो गया। तो ये उसकी निशानी है। यहाँ पे आके बिल्कुल दी एंड हो गया, मजनून हो जाना, पागल हो जाना, किसी ऐसे बंदे को जिसकी दीन और दुनिया का होश ख़त्म हो जाए, इसको ये शो करता है। अगर बिगिनिंग में इसको आप ये कह सकते हैं कोई इस किस्म की बीमारी थी, कोई मजदूरी थी, कोई नशे का था, कुछ भी था इस किस्म का, कि ये बच्चा इस एज के ऊपर जो था ना वो इतना नहीं था एक्टिव, लेकिन बाद में बेहतर हो गया और आस्ता आस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
تو یہ تھی دوستوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اس میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ہیلتھ لائن میں اور سوری فیٹ لائن میں بہت سارے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ان کو اکیلے بھی پڑھا جاتا ہے, ان کو دوسری لائنوں کے ساتھ جوڑ کے بھی پڑھا جاتا ہے, پھر ہم ایگزیکٹ دیکھتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لائن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ 90% لوگوں کے سارے سوال اسی لائن کے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس بارے میں کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں دوستوں کے درمیان. شکریہ.